वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल पेरेंटिंग। ब्रेक से पहले डॉक्टर न्यूटन ने हमें यहाँ पे गाइडेड मेडिटेशन कराया और बहुत से मेहमान हैं यहाँ पर और तैयार हैं अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, अपनी क्वेरीज के साथ। तो कौन सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? मैंने देखा, मैं पैदा जिस घर पर हुई थी तो मैंने वहाँ देखा मैं अपनी सिस्टर के साथ खेल रही हूँ एंड आई कुड फील द कॉरिडोर एंड द गार्डन देयर एंड द रूम्स। आई वाज जंपिंग अराउंड द सेम वे जो हम लोग बचपन में करते थे। आई वाज वेरी हैप्पी विद प्लेइंग विद माय सिस्टर एंड विद माय डैड। सिट आई वाज सिटिंग ऑन हिज स्टमक एंड लाइक प्लेइंग विद हिम। Wonderful. Okay, it's a reconnection to your childhood energy, playful energy. How did you feel? After this, how are you feeling? I'm feeling really good. Wonderful, wonderful. Very डॉक्टर nice. न्यूटन, इन्होंने जो देखा, क्या उसका असर इनके बच्चे पर भी पड़ेगा? Definitely, when she understood that through her own experience, how safe we feel when we are little children in our own home, how much playful we felt. Now she understands her son and daughter and her children. When they're playing, it's needed for them. They have to be feeling safe. They have to feel playful. They have to be creative and spontaneous. If she is feeling safe, तो her son will also feel Also safe. naturally. डॉक्टर लक्ष्मी, ओपन माइंडेड होना कितना ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए? अगर पेरेंट्स ओपन माइंडेड होंगे तो शायद बच्चे भी आगे ओपन ये माइंडेड। बहुत ज़रूरी है क्योंकि ना व्हेन यू आर ए चाइल्ड यू नीड टू प्ले, यू नीड टू बी जॉयफुल। सो जब पेरेंट्स ये समझ सकते हैं, दे विल बी एबल टू अलो देयर चिल्ड्रन टू बी a child. Right. If not, they say, you now stop it, it's enough. But it's not enough for the child. Right, They want to play, they want Sometimes to be joyful. the child wants to play in the rain. Parents need to allow them to drench in the rain and to just dance in the rain because it's such a beautiful experience. Sometimes they want to play with the mud. Parents, they can be there guiding them, allowing them to be complete freedom and playful. Right. हम ये नहीं भूलना है कि हम जब बच्चे थे, हम सब मिट्टी के साथ we played with everything. यानी जो काम उन्होंने बचपन में किए उन्हें बच्चों को भी करने देनी चाहिए। और भी बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं जो हमारे व्यूअर्स पूछना चाहते हैं, हमारे गेस्ट पूछना चाहते हैं। जी बताइए। मैंने अपने चाइल्डहुड में ये देखा कि मैं 7 इयर्स ओल्ड की थी तो मैं इतनी तेज़ साइकिल ड्राइव करी थी विदाउट सपोर्टर्स और मैं गिर गई थी तो मुझे बहुत वो चोट लगी थी। तो मुझे ये याद आ रहा था अपनी चाइल्डहुड में। इन्होंने देखा कि ये साइकिल चला रही हैं और उसके बाद ये गिर गई और इन्हें बहुत चोट लगी। Oh, okay. What happens is those kind of unpleasant memories, when they get released, you feel more free actually. That time when you have fallen from the bicycle, you are hurt, you might have cried, you might have felt, oh, I can't ride the bicycle well. Now that belief system has went away from आपको you. अच्छा लग रहा है अभी? Good, very good, very good. You have released that That's memory. wonderful. Any other experience? हमने देखा कि me myself playing with me as I was small, Oh, my present self. and me as a 2-year-old, we have tied some cloth in our eyes and we are trying to catch each other or Oh, we are playing freely. excellent. How did you feel? I feel very happy. Very Good, happy. Yeah, that's excellent. Wonderful, Excellent. excellent. You connected with your happy, playful child. You have started really making that connection, deep connection with your own inner child. डॉक्टर न्यूटन, मुझे लगता है जब कोई बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है तो सब बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब कोई अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस उन्होंने किया हो। Yes. क्योंकि कहीं ना कहीं वो उन्हें रोक देता है दोबारा इस तरह की मेडिटेशन करने। तो किसी के साथ कोई और अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हुआ हो जो आप शेयर करना चाहते हैं? Yeah. बताइए। Real good scolding from my dad. Dad, okay. But not scoring good in the school. तो वो अभी तक it was there in my mind and it keeps coming whenever I meditate. That's true. Those unpleasant memories also, when they get released, so much of healing and release happens. Resolution happens. What happens is there's a voice of our mother and father, grandmother, grandparents. It is there in our heads constantly because those scoldings that we received, sometimes it's not went away from our head. It forms a block also. Whenever a child is put down, whenever a child is invalidated, whenever a child is scolded badly,
it forms a block, emotional block. तो आप कह रहे हैं कि अगर कोई अनप्लेजेंटनेस हमें दिखती है मेडिटेशन के दौरान तो हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें उस और ज़्यादा मेडिटेशन करना चाहिए It ताकि gets वो जो released. फियर्स और ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज हो dissolve. जाए। क्या बेनिफिट्स हैं डॉक्टर लक्ष्मी कॉन्शियस पेरेंटिंग के, अगर मैं जल्दी से जानना चाहूँ? Yeah, if the parents can give this conscious parenting, the child will be very brilliant, intelligent, and confident, you know, in all ways. And their development really just blossoms in all ways, physically, mentally, emotionally, intellectually, and spiritually. क्या बात है, यानी कि बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं कॉन्शियस पेरेंटिंग के। और आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से स्पिरिचुअल पेरेंटिंग का हिस्सा है कॉन्शियस पेरेंटिंग और कौन सी वो बातें हैं जो पेरेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए। आज हमने यहाँ पर जितने भी हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े उन्होंने ग्रुप में मेडिटेशन किया, लेकिन अब आगे आने वाले एपिसोड्स में हम इंडिविजुअली 1-to-1 सेशन डॉक्टर न्यूटन के साथ कराएंगे, जिसमें डॉक्टर न्यूटन सभी पेरेंट्स को, सभी बच्चों को इंडिविजुअली गाइडेड मेडिटेशन के ज़रिए स्पिरिचुअल पेरेंटिंग के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझाएंगे। लेकिन वो सब होगा आगे आने वाले एपिसोड्स में। लेकिन आज के लिए डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी, आप यहाँ आए, आपने समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने समय निकाला। और आगे मुलाकात होगी आपसे आने वाले एपिसोड्स में, जहां आपको डॉक्टर न्यूटन गाइडेड मेडिटेशन कराएंगे। तो पेरेंटिंग का मतलब है बच्चों की सही देखरेख। जी नहीं, इसके अलावा भी है बहुत कुछ और, यानी बच्चों को प्यार देना, उन्हें एक रिस्पेक्ट देना, एक स्पेस देना। यही सब कुछ हमने जाना और महसूस किया कि स्पिरिचुअल पेरेंटिंग क्यों ज़रूरी है आज की ज़िंदगी में, क्यों ज़रूरी है बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्पिरिचुअल पेरेंटिंग के कुछ लॉज भी हैं? है ना अजीब बात? जी हाँ, स्पिरिचुअल पेरेंटिंग के भी कुछ लॉज हैं जो हम आपको अगली बार बताएंगे अपने अगले एपिसोड में। लेकिन तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते होगी एक नए एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।